ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದ 2000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ। वो बीमार थे, अनकॉन्शियस थे, सालों तक बिस्तर पे रहे। आज वो हमें छोड़ के चले गए। मैं आदरपूर्वक जॉर्ज साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। साथियों, ये परीक्षा पे चर्चा पिछली बार और इस बार में अनुभव के आधार पर काफी बदलाव आए हैं। दुनिया के कई देशों से भी लोगों की मांग थी तो वो भी जुड़ रहे हैं। उसी प्रकार से भारत के भी सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व हो, वहां के विद्यार्थियों से बात हो। इसमें सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, जूनियर स्टूडेंट्स भी हैं, और ये बात अधूरी रहती अगर इसमें अभिभावक न होते, पेरेंट्स न होते, टीचर्स न होते। और इसलिए कोशिश की गई है कि एक प्रकार से विद्यार्थी के जीवन में जो सीधे संपर्क में आते हैं उन सबसे संवाद करने का ये अवसर बने। अभी जो एक नृत्य प्रस्तुति हुई, मैं समझता हूं कि उसमें जो बातें बताई गई हैं उसके बाद मेरे कोई भाषण की आवश्यकता नहीं है। वो सारी बातें उसमें समाहित है। अगर हम उसको ही आज का संदेश मान लें तो मेरे समेत यहां उपस्थित और देश में इस कार्यक्रम को देखने वाले हर किसी के लिए एक नया विश्वास पैदा करने वाला, नई आशा पैदा करने वाला वो एक नृत्य प्रस्तुति थी। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। ಇನ್ನು ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ। रीना ने जो कमाल दिखाई, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದು। PM ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಂಗೆ CCA ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ CCA ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದನೂ CGPA ಅಂತ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು। ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತದೆ। CC ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ನಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ CC ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೀಗ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ। ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಗೊಂದಲವೇ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ಆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗೊಂದಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ। ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ। ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ 4 ರಿಂದ 5 ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು। ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ। ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಡೀತಿದೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ। ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕರೆದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ, ಸರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ, ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು। ನಮ್ಗೆ PM ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ। ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಂದ ಭಾಳ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಂದರೆ ಒಂಥರ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಇದ್ದಂಗೆ। ಈಗ ನಮಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವನು ಕೇಳಬೇಕಂತ। आइए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? माननीय, इस बार स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, और वो भी देश से भी हैं, विदेश से भी हैं। सबसे पहले रूली दत्ता जो कि कोलकाता से हैं,
एक टीचर हैं और वो आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। Namaskar sir. My name is Sruli Datta and I teach biology at Kendriya Vidyalaya, IIM Joka, Kolkata. My question to you sir is, as a teacher, what do you tell parents who consider exams as make or break situation for their children's future? Thank you sir. एज ए टीचर हमें उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए जो ये समझते हैं कि एग्जाम से उनके बच्चों का भविष्य या तो बन सकता है या बिगड़ सकता है। माननीय इसी से मिलता जुलता ही एक और सवाल है जो हमारे बीच में इस वक्त बैठे हैं रोहित श्री, जो कि बेसिकली केरला से हैं लेकिन दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित श्री है, मैं केरला का रहने वाला हूं और मैं अभी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। महोदय, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रहती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है। महोदय, मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है, देशवासियों को आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए, आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें? धन्यवाद। माननीय आपसे निवेदन है कि कृपया इन्हें प्रेरणा दें। आप केरल से हैं लेकिन मुझसे भी ज्यादा अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। आप में से बहुतों को जब 10वीं या 12वीं कक्षा में जाते होंगे या फाइनल एग्जाम होगा, किसी को दिन में 10 बार सुनना पड़ता है, समझ नहीं आता है। दोस्तों के साथ टेलीफोन पर बैठे रहो, चलो कंप्यूटर छोड़ो, कुछ पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, ऐसा ही होता है ना? सच बताइए ना। दरअसल परीक्षा का महत्व तो है, उसका इनकार नहीं कर सकते, और मैं ये तो नहीं कह सकता हूं अरे परवाह मत करो यार, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करे कि भाई ये एग्जाम 10वीं कक्षा की है, ये एग्जाम 12वीं कक्षा की है, ये मेरी जिंदगी का कसौटी नहीं है, अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो कुछ कहते हैं ना भाई अब 10वीं में गया तो सब बेकार, जिंदगी पूरी, ऐसा कुछ नहीं है।